Hello my dear students, welcome to all of you. So now we will start a very good chapter of class 11th, that is atomic structure. And students, the atomic structure have very high weightage in your competitive exams like NEET and JEE. Several times examiner have asked 2 to 3 questions from JEE mains, NEET, and also the integer question belongs from the atomic structure. So my dear students, we are starting our first topic of this chapter, that is Dalton's atomic theory. It is Dalton's atomic theory. Now listen carefully. That Dalton's atomic theory was disregarded after few years of discovery. इसकी डिस्कवरी होने के कुछ ही टाइम पीरियड बाद इस थ्योरी को डिसरिगार्ड कर दिया गया. मीनिंग इज दैट इट हैव बीन फेल्ड बाय वेरियस साइंटिस्ट. सो let's start our topic, that is Dalton's atomic theory. Students, basically the Dalton's atomic theory is based on indivisibility of an atom. It is based on indivisibility of an atom. So what is the meaning of indivisibility of an atom? The word indivisibility is a property which stands for not further division. So according to the Dalton's atomic theory, atom can never be further divided. And one more thing, according to the Dalton, atom is a smallest particle of an element. Now listen carefully. According to the Dalton's atomic theory, atom is an indivisible particle which is smallest particle of an element. इसका मीनिंग ये है कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता और एटम एक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है. अब कई स्टूडेंट्स के माइंड में आता है, सर एलिमेंट और एटम में क्या डिफरेंस है. सो एलिमेंट कंसिस्ट n number of n atom of n atom. क्या मीनिंग है इसका? जो एक एलिमेंट है उसका फॉर्मेशन n नंबर ऑफ एटम से होता है. तो यहां से ये चीज क्लियर होती है, एलिमेंट में क्या प्रेजेंट होंगे, आपके एटम्स प्रेजेंट होंगे. तो यही नेक्स्ट पॉइंट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट का. सो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या थी? अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which can never be further divided. फर्स्ट पॉइंट क्या है, आराम से सुनना. अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, atom is the smallest particle of an element which can never be further divided. Meaning is that atom is indivisible in nature. अभी आगे चल के इस पॉइंट को रॉन्ग प्रूफ करेंगे. अब आते हैं इसकी सेकंड पोस्टुलेट पर. इसकी सेकंड पोस्टुलेट क्या है? नाउ लुक हियर. सेकंड पोस्टुलेट को समझने से पहले मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूं. We have an unknown element X and
and another unknown element y. So as we know, an element contain n number of atoms. अभी आपको बताया था सेकेंड पॉइंट पर, यहां लिखा था कि एक एलिमेंट में n नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो यहां भी क्या होगा, इस एलिमेंट के अंदर आपके n नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे. इट इज ऑल्सो एन अननोन एलिमेंट. सपोज इफ इन x there are only 3 atoms are present, I am taking hypothetical number. Now listen carefully. This data is only hypothetical for explaining the concept in a proper way. So x, it is containing element A. Sorry, element x containing atom A. अगर फर्स्ट एटम A है तो डॉल्टन के अकॉर्डिंग जो रिमेनिंग एटम्स होंगे वो क्या होंगे, A. क्योंकि डॉल्टन ये बोलता है कि एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं वो सारे क्या होने चाहिए, सिमिलर. अब अगर सपोज करो इन एलिमेंट y also 3 atoms are present, then my dear student these 3 atoms can never be A. अगर x में A है तो y के एलिमेंट क्या नहीं हो सकते, A. तो ये अज्यूम कर लिया B, ये B, ये B. So A can never be similar to the B. तो यहां से डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट निकल के आया जो एक पोस्टुलेट है, और वो पोस्टुलेट ये है, अकॉर्डिंग टू द डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एन एलिमेंट कंसिस्ट सिमिलर एटम्स. व्हाट एम आई सेइंग, एन एलिमेंट कंसिस्ट सिमिलर एटम्स व्हेन the atoms of differ elements are dissimilar in nature. अगर एक ही एलिमेंट्स के एटम है वो तो क्या होंगे, सिमिलर. अगर डिफर एलिमेंट्स के एटम्स हैं तो वो क्या होंगे आपके, डिसिमिलर. तो ये इसकी सेकंड पोस्टुलेट थी. तो सेकंड पोस्टुलेट यहां आपके सामने लिख रहा हूं. Atoms of similar elements, atoms of similar elements are same, but atoms of different elements are dissimilar. ये आपकी कौन सी पोस्टुलेट हुई, पोस्टुलेट सेकंड. इसे भी हम रॉन्ग प्रूव करेंगे अभी थोड़ी देर में. नेक्स्ट है, समझना, एटम्स ऑफ different elements, atoms of different elements combines in simple ratio to form compound. देखो भाई यहां पॉइंट समझना, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज वी आर टेकिंग एटम्स व्हिच बिलोंग्स टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन सिंपल रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड. अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो सिंपल रेशो में कंबाइंड होंगे. नाउ लुक हियर हाउ इट इज हैपन. सपोज Mg is going to be react with O2 for the formation of
magnesium oxide. So reaction is not balanced here. So it is 2 and it is 2. Now reaction is balanced. Now look here, the ratio of atoms. How many atoms of Mg are present here? 2 raised to. And how many atoms of oxygen are present here? Sir, 1. अबे बेवकूफ हो, ये तो मॉलिक्यूल है O2, एटम्स कितने हैं इसमें? 2 हो. So 2 raised to 2 is equal to 1 raised to 1. One more example we can take. N2 plus O2. It is providing twice of NO. Now look here. How many atoms? 2 and here also 2. So when a compound is formed by the combination of atoms from different elements, then they combine in a simple ratio. किसमें combine होंगे? Simple ratio में. ये किसके अकॉर्डिंग है? डॉल्टन के अकॉर्डिंग. तो ये पोस्टुलेट भी रॉन्ग प्रूव होने वाली है. अभी तक जितनी 3 पोस्टुलेट्स हैं उन्हें हम रॉन्ग प्रूव करेंगे. नेक्स्ट last postulate is atom can never created nor destroyed. देख लो, एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते. इसका मीनिंग ये है, ना तो हम नया एटम बना सकते और ना ही हम एटम को नष्ट कर सकते. तो ये हाइपोथेसिस भी आपकी रॉन्ग प्रूव होने वाली है. तो टोटल हाइपोथेसिस कितनी थी? आराम से सोचो कि सर ने कौन कौन सी हाइपोथेसिस हमें बताई है. सबसे फर्स्ट जो हाइपोथेसिस थी वो क्या कह रही थी कि जो एटम्स हैं वो इंडिविजिबल इन नेचर हैं और वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसके? एलिमेंट के. सेकंड हाइपोथेसिस क्या थी? अगर सिमिलर एलिमेंट है तो उनके एटम्स सिमिलर होंगे और अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनके एटम्स क्या होंगे? डिफर होंगे. नेक्स्ट पॉइंट क्या था? अगर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है किससे? डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से, तो वो एक सिंपल रेशो में क्या होंगे? कंबाइन. और लास्ट पॉइंट है, एटम्स कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. चलिए अब इस थ्योरी को डिसरिगार्ड क्यों कर दिया गया वो देखते हैं. यहां तक नोट कर लें. सबसे फर्स्ट जो हाइपोथेसिस थी वो डाल्टन थी. डाल्टन को ये नहीं पता था जो हमें पता है. क्या? ये एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम है. ना लुक हियर, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किसकी है बेटा जी? इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. नाउ लुक हियर, एटम की स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्टिकल और प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. नाउ लुक हियर, व्हिच वन इज स्मॉलेस्ट, एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल? नाउ लिसन केयरफुली, व्हिच वन is small, atom or subatomic particles like electron, proton, neutron. So now look here, the subatomic particles are smaller in compared to atom. And one more thing, the Dalton said that an atom can never further divided. But my dear student, we now from here we can divide an atom in their subatomic particles.
लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो डाल्टन की फर्स्ट पोस्टुलेट डिसरिगार्ड कर दी गई। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट को फ्यूचर में ये पता चला कि एक एटम को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, किसमें? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में एंड न्यूट्रॉन में। इनको हम इजीली क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सेकंड पोस्टुलेट ये थी कि डाल्टन ने ये बोला था कि एक एलिमेंट के ऑल एटम्स क्या होते हैं? सिमिलर। अब देखो, एक ऑक्सीजन नाम का एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन है। एक नाइट्रोजन ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन ले लेते हैं। अब खुद सोचो, क्या इनके सारे एटम्स सिमिलर होंगे या डिफर होंगे? तो देखो, ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स मिलते हैं, O16, O17, O18। अब बात करें कार्बन, कार्बन 12 एंड कार्बन 14 बोथ आर आइसोटॉप्स। हाइड्रोजन H1, H2, H3। हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। Now look here, oxygen, it is a type of element and it is consisting different type of atoms in the form of isotopes. Same is in case of carbon and same is in case of hydrogen. So now look here, the word is isotope. What is the meaning of isotope? Isotopes consisting similar atomic number. These all consist similar atomic number, but different or differ mass number. So due to the existence of isotopes, the second postulate was disregarded by scientists. Now, what was the third postulate of Dalton's? The third postulate was atoms of different elements combined in a simple ratio. In a सिंपल रेशो। अब देखो, कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो अपने स्टोकियोमेट्री रेशो में प्रेजेंट होते हैं, सिंपल रेशो में नहीं। यहां देखते हैं स्टोकियोमेट्री रेशो आखिर है क्या। मैंने आपको एग्जांपल एक्सप्लेन किया था, Mg+O2 which was providing you MgO and there the ratio of atoms from different elements was in simple ratio. Now look here, Fe 0.950, Fe 0.930, Ni 0.98। अब तीनों को देखो, आराम से घूर के देखो, गौर से देखो, क्या यहां पर रेशो सिंपल लग रहा है आपको? यहां पर रेशो क्या है? स्टोकियोमेट्री रेशो। तो थर्ड पोस्टुलेट भी डिसरिगार्ड कर दी गई, क्योंकि कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो सिंपल रेशो में प्रेजेंट नहीं होंगे, डिफरेंट एटम्स के। और लास्ट हाइपोथेसिस क्या थी? एटम्स कैन नेवर बी क्रिएटेड और नॉर destroyed. This was absolutely wrong. जब हम रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी कर चुके थे, आप पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर रेडियो एक्टिविटी, तो एक पॉइंट सुनना, हम एटम का फॉर्मेशन कर सकते हैं किससे? आर्टिफिशियल, स्पेलिंग मिस्टेक को चेक कर लेना, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से। So my dear students,
Now atom can be generated by the help of artificial radioactivity. तो मैक्सिमम पोस्टुलेट्स थी जो डाल्टन की, उन्हें डिसरिगार्ड कर दिया गया। अब कई बच्चे बोलते हैं सर इसकी 50% हाइपोथेसिस तो सही है जो उसने प्रोवाइड कराई, कि जो 50% पोस्टुलेट्स हैं वो तो सही है बेटा, 50% नहीं 99.99% सही है, लेकिन 0.1% तो रॉन्ग है, और अगर 0.1% रॉन्ग है तो वो थ्योरी भी क्या है आपके लिए, रॉन्ग है। तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। Now we will study about the discovery of cathode rays, anode rays, electron, proton, neutron. So second heading is discovery of cathode rays. डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस, यहां हम स्टडी करेंगे किसकी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर कैथोड रेस आपके माइंड में सेट हो गई तो एनोड रेस में ज्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, द नेम ऑफ साइंटिस्ट, इट वाज फर्स्टली डिस्कवर बाय J.O. जूलियस प्लकर। इनकी डिस्कवरी जो की है वो की है किसने, जूलियस प्लकर ने, किसकी, कैथोड रेस। अब भाई जूलियस प्लकर ने आखिर किया क्या था, समझना। यहां हमने कैथोड लिया और कैथोड को कनेक्टेड करते हैं हमेशा किससे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। नेगेटिव से कौन कनेक्ट कर दिया, कैथोड, तो पॉजिटिव से किसको कनेक्ट करेंगे, एनोड। दिस वन is cathode and this one is anode. डायग्राम बनाते जाए साथ साथ। अब देखो ये जो क्या है आपकी बैटरी, इट प्रोवाइड higher voltage up to 10 to the power 4 volt or more। ये क्या है, बैटरी है जो हायर वोल्टेज प्रोवाइड करेगी। इट इज योर वैक्यूम पंप, इट जनरेट वैक्यूम एनवायरनमेंट। सुन लेना, ये वैक्यूम पंप है, ये डबल सी वन सॉरी, ये जो वैक्यूम पंप है वो यहां वैक्यूम जनरेट करेगा। सिंपल अगर हम बात करें तो आपने घर में पानी की बोतल देखी होगी या कोको कोला की बोतल देखी होगी, खाली पानी की बोतल है, ठीक है। अगर मैं उसका बोतल का जो कैप है उसे ओपन कर दूं और अपने माउथ से सक करूं, सक किया तो वो क्रैम्बल हो जाएगी, अंदर से नहीं होगी, मतलब दब जाएगी, नहीं दबेगी, दबेगी, वो क्या होगी, क्रैम्बल होगी, मतलब वहां प्रेशर हाई होगा। तो ये वैक्यूम जो है वो क्या करेगा, यहां पर जो गैसेस प्रेजेंट है, जो डिजायरेबल गैस नहीं है, उनको यहां से सक करके
गैसेस का प्रेशर जो होगा उसे लो करेगा। क्या करेगा? गैसेस का प्रेशर लो। तो यहां पर जो डिजायरेबल गैसेस है हमारी, यहां हम जो गैस लेंगे वो गैस होती है गैस एट वेरी लो प्रेशर। उसका रीजन है बताऊंगा, गैस हमने लो प्रेशर पे क्यों ली, और इसको हम कहते हैं क्या? डिस्चार्ज ट्यूब। ये क्या होती है आपकी? डिस्चार्ज ट्यूब। देखो ये डायग्राम है आपका कंप्लीट। अब देखो मैंने आपको एक पॉइंट बोला कि ये गैसेस हैं वो बहुत लो प्रेशर पर यहां यूज की जाती हैं, उसका रीजन अभी समझाने वाला हूं। उससे पहले एक पॉइंट समझा दूं। यहां हम ZnS की कोटिंग करते हैं, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर देते हैं, और जिंक सल्फाइड जो होगी, यहां कोटिंग किसकी की है? जिंक सल्फाइड की। और जो जिंक सल्फाइड है वो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? फ्लोरोसेंस, मतलब यहां ब्राइटनेस, चमक आएगी। कैसे वो देखेंगे? सबसे पहले ये देखें, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज बाय जूलियस प्लकर। तो जूलियस प्लकर ने सबसे पहला पॉइंट यही आता है बच्चों के माइंड में कि सर उसने गैस वेरी लो प्रेशर पे क्यों ली। देखो जूलियस प्लकर के माइंड में एक बात थी, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर था। जो गैसेस होती हैं उनका जनरली हाई प्रेशर पर, किसकी बात कर रहा हूं? ऑन हाई प्रेशर, गैसेस आर जनरली ऑन हाई प्रेशर डू नॉट आयोनाइज, इनका आयोनाइजेशन नहीं होता। हाई प्रेशर पर जो गैसेस हैं उनका आयोनाइजेशन नहीं होता, और अगर आयोनाइज नहीं होती तो आपकी जो गैसेस होंगी वो बैड कंडक्टर होंगी। So as Julius Tucker was aware about that the gases are very bad conductor on high pressure, then he select gases in this tube at very low pressure. अब देखो वेरी लो प्रेशर सेलेक्ट किया, तो जैसे ही यहां बैटरी को कनेक्ट किया और बैटरी को ऑन करते हैं यहां से, तो हाई वोल्टेज क्या होगा? जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? हाई वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज से क्या होगा? सपोज करो ये हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस को जैसे ही हाई वोल्टेज मिली तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या होगा? आयोनाइज हो जाएगा। सपोज करो ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, क्या होगी? आयोनाइज। नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, क्या होगी? आयोनाइज। ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, माइंड में इसको भी सेट मत कर लेना। सर ये हुआ ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, आपने डोनेट करवा दिया, कैसे? भाई हाई प्रेशर है, सॉरी हाई वोल्टेज है और लो प्रेशर है, तो यहां से क्या रिलीज हुए? इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज देखना, जो जूलियस प्लकर ने 1853 में एक्सपेरिमेंट किया था, करीब 200-250 साल पहले, तो वहां इतने इंस्ट्रूमेंट तो नहीं थे उस टाइम पे, तो उन्होंने क्या बोला कि जैसे ही बैटरी कनेक्ट की जाती है तो यहां से इनविजिबल रेस पास होती है। ये इनविजिबल है, दिख नहीं रही। सर दिख नहीं रही तो उसने कैसे बोल दिया इनविजिबल है? तो बेटा 1 मिनट का वेट करें, उसने कैसे बोल दिया? उसने ऐसे बोला कि जैसे ही हाई वोल्टेज प्रोवाइड की तो यहां पर फ्लोरोसेंस ऑब्टेन हुई, यहां पर ब्राइटनेस क्या हुई? ऑब्टेन। और यहां ब्राइटनेस ऑब्टेन कब होगी? जब यहां से कोई ना कोई मटेरियल क्या हो रहा होगा? पास हो रहा होगा। सुन लेना, यहां से कोई ना कोई मटेरियल क्या हो रहा होगा? पास। अब हमें एक पॉइंट पता है कि कैथोड, सॉरी बात करें एनोड, एनोड क्या होती है? पॉजिटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव पर जो रेज इंसिडेंट हो रही हैं, जो इनविजिबल रेज इंसिडेंट हो रही हैं,
वो कौन सी चार्ज होंगी? नेगेटिवली चार्ज, जिन्हें जूलियस प्लकर ने क्या बोला? कैथोड रेस। और कैथोड रेस अगर नेगेटिवली चार्ज है तो उनका फॉर्मेशन किससे हुआ होगा? इलेक्ट्रॉन से हुआ होगा। तो स्टेटमेंट सुनना, डायग्राम को देखते रहो, स्टेटमेंट सुनना। देख लो डायग्राम पर आराम से। देखो दोबारा समझा रहा हूं। जैसे ही हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया तो जूलियस प्लकर ने ये देखा कि कुछ इनविजिबल रेज है, वो कैथोड से एनोड पर शिफ्ट हो रही हैं। बच्चों के माइंड में क्या, मेरे माइंड में भी सबसे फर्स्ट टाइम पे यही कंफ्यूजन था, सर इनविजिबल है तो पता कैसे चला? देखो भाई, अभी ये बैटरी कनेक्टेड नहीं की, यहाँ पर फ्लोरोसेंस नहीं है। बैटरी कनेक्ट करते ही यहाँ से फ्लोरोसेंस आई, तो यहाँ से फ्लोरोसेंस कब आई होगी? जब यहाँ से कोई बीम या कोई रे आ रही होगी। जब ये रे इधर आएगी और इंसिडेंट होगी तो यहाँ क्या ऑब्टेन होगी? फ्लोरोसेंस। एक बच्चा बोला सर एक चीज बताओ। मैंने बता बेटा, सर अगर मैंने मान लिया कि हाई वोल्टेज पर यहां से रे जनरेट हो रही है, तो यहां से रे जनरेट हुई, तो देखो बच्चे ने क्या बोला, सर यहां से रे जनरेट हो रही है तो ये एनोड है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो किस पर जाएगी? कैथोड पर जाएगी। तो यहां किससे आएगी? कैथोड से आएगी। तो स्टेटमेंट सुने कि जूलियस प्लकर was first scientist who studied about the cathode rays, and according to the Julius Plucker, when we provide high voltage, how much? 10 to the power 4 volt or more to the gases which are present at very low pressure, it is around 10 to the power minus 4 atm, or it can be less from it. Then he observed that the क्या बोला था? The invisible rays was passing from cathode to anode, which produce fluorescence at ZNS screen. Then he said, if the rays are passing from cathode to anode, they will be negatively charged. Hence, my dear student, the cathode rays are negatively charged rays, और उन्हें नाम दिया कैथोड रेस। अब आते हैं किस पर? कैरेक्टरिस्टिक पर। किसके? कैथोड रेस। तो सुनना, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या था? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बहुत सिंपल है। देखो उन्होंने ये बोला कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, यहां से ये जो इनविजिबल रेस पास हो रही है, कौन सी रेस है ये? इनविजिबल रेस जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। किसमें ट्रेवल करेंगे? स्ट्रेट लाइन में। अब बच्चों ने पूछा सर उसे कैसे पता पड़ा? उसने यहाँ एक ऑब्जेक्ट उठा के रख दिया। क्या उठा के रखा? एक ऑब्जेक्ट। तो यहां जब यहां जब ये रेस इंसिडेंट हुई तो इस जगह पर इसकी शेडो ऑब्टेन हुई। क्या ऑब्टेन हुई? शेडो। तो देखो उनका फर्स्ट पॉइंट था कि कैथोड रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन with very high velocity to produce shadow of the object placed in the path। उन्होंने ये बोला कि ये कैथोड रेस जो है आपकी, ये बहुत हाई वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, और जब उनके पाथ में एक ऑब्जेक्ट रख दें तो उसकी हमें क्या ऑब्टेन होती है? शैडो ऑब्टेन होती है। अब सेकंड पॉइंट सुनना, जो कैथोड रेज है, बहुत शानदार पॉइंट है, जो कैथोड रेज है
वो मैकेनिकल इफेक्ट भी जनरेट करती है। पॉइंट ये है, जो कैथोड रेज है वो मैकेनिकल इफेक्ट भी जनरेट करती है, बट हाउ? अगर मैं यहां पर साइकिल का पेडल होता है ना, एक व्हील का पेडल रख दो यहां पर, तो ये जो यहां से ट्रांसमिट हो रही है आपकी रेस, उनकी वेलोसिटी इतनी हाई होती है कि वो पेडल रोटेट करने लग जाता है। दोबारा सुन लेना, यहां से ये पास हो रही है, इनकी वेलोसिटी इतनी होती है कि वो पेडल क्या होगा, रोटेट करने लग जाएगा। ये उनका प्रैक्टिकली डिटरमाइन क्या था, कॉन्सेप्ट था। तो कैथोड रेस जो है वो मैकेनिकल इफेक्ट क्या करती है, शो। अब बात सुनना, उन्होंने ये देखा यार ये पेडल है और ये पेडल रोटेट कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है, यहां पर जो भी रेस पास हो रही है वो किसी ना किसी किसकी बनी होंगी, मटेरियल की फॉर्म हुए होंगे। किसके फॉर्म हुए होंगे, मटेरियल के। मीनिंग इज दैट द रेस विल कंसिस्ट एनी मास। इन रेस का एक क्या होगा, मास भी होगा। तो सेकंड पॉइंट ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो रेज है जो यहां से ट्रांसमिट हो रही हैं, उनका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास भी होगा। देख ले, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अब देखो, थर्ड पॉइंट, Julius Plummer applied electrical and magnetic field here. They applied electrical and magnetic field here. Then they observed that these invisible rays was moving toward पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया तो ये जो आपकी रेस थी वो कहां मूव कर रही थी, पॉजिटिव चार्ज पर। एक बच्चा बोला सर कैसे पता चला, यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट लगा दी हमने। क्या लगाई, पॉजिटिव प्लेट लगा दी और नेगेटिव प्लेट लगा दी। तो यहां दोनों पे यहां एक स्क्रीन लगा दी ऑब्जर्व करने के लिए। तो ये जो रेस थी वो नेगेटिव, ये रेस कहां जा रही थी, पॉजिटिव पर, और यहां क्या जनरेट हो रहा है, फ्लोरोसेंस जनरेट हो रहा है। अब ये देखो, ये रेस अगर यहां फ्लोरोसेंस जनरेट कर रही हैं, इसका मतलब अट्रैक्ट कहां हो रही हैं, पॉजिटिव पर। और पॉजिटिव पर कौन अट्रैक्ट होगा, आपका नेगेटिव। कौन अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव। तो उन्होंने ये देखा कि जब यहां हम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो रेज हैं वो कहां शिफ्ट हो रही हैं, आपकी पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट पर। जो ये इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, जो ये इंडिकेट कर रहा है यहां पर जो रेस पास हो रही हैं उन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। यहां तक देख लो। अब बहुत छोटे छोटे पॉइंट है कुछ, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। कैथोड रेस क्या जनरेट करते हैं, फ्लोरोसेंस। तो इट जनरेट फ्लोरोसेंस, ये तो सिंपल है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। अब अगर हम क्या करें, यहां किसी थिन मेटल की शीट रख दें, सुनना, यहां अगर हम क्या कर रहे हैं, थिन मेटल की शीट रख दे रहे हैं, जैसे मैंने एल्यूमिनियम की थिन शीट रख दी, तो ये रेज इसको पेनिट्रेट कर जाएगी। ये भी प्रैक्टिकली देखा गया जूलियस प्लकर के द्वारा कि अगर यहां मैं थिन मेटल की शीट रख रहा हूं तो ये जो रेस है इसे क्या कर जाएंगी, पेनिट्रेट कर जाएंगी। तो पॉइंट देख लो, फ्लोरोसेंस और थिन मेटल की शीट को क्या कर रहे हैं, पेनिट्रेट। एक और होता है, अगर यहां मैं एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दूं कोई भी,
क्या रख दूं, फोटोग्राफिक प्लेट। तो फोटोग्राफिक प्लेट भी इससे अफेक्ट होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए जल्दी बता रहा हूं। फ्लोरोसेंस थिन मेटल की शीट को क्या करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे, और फोटोग्राफिक प्लेट जो है उसे भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लास्ट पॉइंट कॉम्पिटिटिव और बोर्ड एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। रेशियो ऑफ चार्ज टू मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। पॉइंट सुनना, अगर चार्ज और मास का रेशियो है, क्या बोला मैंने, अगर चार्ज और मास का रेशियो है तो उसे स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। तो Q अपॉन N, चार्ज टू मास, इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। क्या होता है ये, स्पेसिफिक चार्ज। और इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे तो E/m। सबसे पहली बात है, डाटा डायरेक्ट याद होना चाहिए, याद नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इट इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम एंड मास इट इज 9.1 into 10⁻31। अब या तो ऐसे एग्जाम में बैठ के आप सॉल्व करो, सिंपल सी बात है, या डायरेक्ट डाटा याद रख सको तो बेस्ट है, नहीं तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। कूलम पर केजी कैसे आया, -31 ऊपर जाएगा, +31, 12 आएगा, सॉल्व करेंगे तो 10⁻11 हो जाएगी। यहां तक नोट कर लें। अब देखो यहां से एक पॉइंट प्रूव हुआ, क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। क्या होंगे, बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स, किसके, एक एटम के। तो चलिए आगे के लेक्चर के लिए वेट करें, आगे का लेक्चर अपलोड होगा, तब तक पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।